Papers to be laid on the table, Srimati Smriti Jubin Irani. Namaskar, sir. With your kind permission, I wish to lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 1 of today's revised list of business. General Retired V.K. Singh. Sir, with your permission, I raise to lay papers mentioned against my name at serial number 2 of the revised list of business. Sri Nityanand Rai. माननीय महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यावली में क्रमांक संख्या 3 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभापटल पर रखता हूं। Srimati Darshana Vikram Jardos. Permission I rise to lay on the table of the House paper mentioned against my name at the serial number 4 of the Ministry of Textile as per the today's revised list of business. Srimati Anpurna Devi. उपसभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की कार्यावली सूची की क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखती हूं। श्री अजय कुमार। से आज की संशोधित कार्यवली में क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लिखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। श्री प्रतिमा भौमिक। माननीय सुश्री प्रतिमा भौमिक। मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रमांक संख्या 7 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। डॉक्टर सुभाष सरकार। With your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 8 in today's revised list of business. श्री जॉन बारला। उपसभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 9 में उल्लिखित कागजात सदन के पटल पर रखता हूं। रिपोर्ट्स ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, श्री भुवनेश्वर कलिता। Honorable Deputy Chairman, sir, I rise to lay the Hindi and English versions of the reports numbers 54th, 55th, 56th, 57th, 58th, 59th, and 68th of the public reports of the Public Accounts Committee 22-23 as listed against my name in today's revised list of business. Thank you, sir. Statements of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Communications and Information Technology, Dr. Anil Agrawal. Thank you, sir. Honorable sir, I rise to lay two statements, Hindi and English versions, showing further action taken by the government on the recommendations contained in the 30th and 36th action taken reports of the Standing Committee on Communications and Information Technology 22-23 as listed against my name in today's list of business. Statement of the Department-related Parliamentary Standing Committee on External Affairs, Srimati Jaya Bachchan. Thank you, sir. Sir, I rise to lay on the table a copy each of English and Hindi of the statement showing action taken by the government on the observation recommendations contained in the 14th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on External Affairs on action taken by the government on the observation recommendations contained in its 10th report on India and bilateral investment treaties as listed against my name at serial number 3 in today's revised list of business. Thank you, sir. Statements by Minister, Srimati Smriti Jubin Irani. Sir, in pursuance of provisions of Rule 35 of Procedure and Conduct of Business, I wish to inform the House status of implementation of recommendations contained in the 316th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Human Resource Development on issues related to safety of women pertaining to the Ministry of Women and Child Development. Additionally, sir, in pursuance of provisions of Rule 35 of Procedure and Conduct of Business, I wish to inform the House status of implementation of recommendations contained in the 333rd report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports relating to 326th report on demand for grants 2021-22 pertaining to the Ministry of Women and Child Development. Thank you. Motion for election to the National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board, Dr. Mansukh Mandavia to move a motion for election of one women member from amongst the members of the House to be a member of National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board. Sir, I rise to move that in pursuance of Section 7(2)(c)
of the Surrogacy Regulation Act 2021, this House to proceed to elect in the manner as directed by the chairman, one woman members from amongst the members of the House to be a member of the National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board. Motion moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Now 0 hour. माननीय श्री कल हमने जो नोटिस कल भी दी थी और आज भी दिए हैं कि चाइनीज एग्रेशन के बारे में और जो अतिक्रमण हुआ है इसके बारे में हम डिटेल चर्चा इस सदन में चाहते हैं और इसीलिए हम पहले से हमारी कोशिश रही है कि हमको पूरी जानकारी मिले और देश के लोगों को भी जानकारी हो कि वहाँ की एक्चुअल स्थिति क्या है और सदन को बहुत से चीज़ें जो डिफेंस मिनिस्टर ने नहीं बताया वो हमारे पास चंद जो इंफॉर्मेशंस हैं जिस जगह जो पहले खाली थी अब वहाँ पर ब्रिज बन गए हैं और बहुत से कॉलेजेस बन गए हैं, आज कोई इस पर नोटिस मकान नहीं है, बन गए हैं। नहीं, और इसके बाद इस पे कोई चर्चा की जाए नहीं प्लीज नहीं इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए सर। कोई सर नोटिस आज लिस्टेड नहीं है सर, इसके बारे में माननीय रक्षा मंत्री जी अपना बयान दे चुके हैं। we are for the country, we are with army। और माननीय ब्रिजलाल जी आप बोले, आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी प्लीज। माननीय मंत्री जी 11:30 बज चुके हैं। माननीय सदस्यगण, माननीय रक्षा मंत्री जी का बयान होगा अभी। स्टेटमेंट आपको हाथ में मिल रहा है, अभी बट रहा है स्टेटमेंट। माननीय रक्षा मंत्री जी, अरे प्लीज स्टेटमेंट मिल रहा है, प्लीज नो माननीय रक्षा मंत्री जी आप कॉल रक्षा मंत्री जी नो। माननीय रक्षा मंत्री जी अपना बयान। आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूँगा। उपसभापति महोदय, 9 दिसंबर 2022 को चाइनीज पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। उपसभापति और सदन को यह भी बताना चाहूँगा, इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग भी की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शंस के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए उन्हें कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है। मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा और अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम और प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगी। धन्यवाद। माननीय रक्षा मंत्री के अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में
9 दिसंबर 2022 को जो घटना घटी उसके बारे में एक विस्तृत वक्तव्य सदन के समक्ष रखा है। माननीय सदस्यगण, हमारी सेनाएं पूरी मुस्तैदी और ताकत के साथ हमारी सीमाओं पर तैनात हैं और उनके शौर्य और वीरता पर पूरे सदन को, हम सबको विश्वास और भरोसा है। देश की सीमाओं की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए सर्वोच्च बलिदान देने में भी हमारे सैनिक सदैव तत्पर हैं और रहेंगे। माननीय सदस्य, यह एक संवेदनशील विषय है। जैसा माननीय रक्षा मंत्री जी ने बताया, सरकार उत्पन्न हुई स्थिति को पूरी गंभीरता के साथ ले रही है और सभी आवश्यक कदम